Next question, derive formula of magnetic force acting between two very long current carrying straight wires. बराबर, और फिर आपको एम्पियर की ऐसा डेफिनेशन देनी है. Suppose two straight very long current carrying wires are placed parallel to each other. Okay, having currents I1 I2 respectively. They are separated by distance r. बराबर, फिर here we will consider that wire 2 is in magnetic field of wire 1. So magnetic force act on wire 2 due to magnetic field of wire 1. Similarly, you can consider that wire 1 is there in magnetic field of wire 2. Okay, and it is current carrying wire, so magnetic force act on wire 1. ठीक है. Here we will find out magnetic force on wire 2 due to magnetic field of wire 1. So magnetic field of wire 1 mu naught I1 upon 2 pi r. If I keep my thumb in the direction of current, you can see magnetic field. The direction of magnetic field perpendicular to plane outside, yani z direction. Consider current element of length L of wire 2. Okay, so I2L. Okay, here listen. The direction of current is x direction. Here we have considered both I1 I2 are in same direction. Both I1 and I2 are in same direction. Now we know that force on wire 2 या current element बराबर of wire 2, ये क्या होगा? I2L क्रॉस B1. ठीक है. So therefore F2 I2L I cap cross magnetic field mu naught I1 upon 2 pi r k cap. Now I cross k is minus j, तो आपका F2 क्या होगा? mu naught I1 I2L अपन 2 pi r माइनस j. माइनस j का मतलब है ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, बराबर. तो F2 is towards wire 1, so this is attractive kind of force. ठीक है. So we can conclude that when current in both wire are in same direction, so attractive force will act. And if the I1 I2 are in opposite direction, the repulsive force will act. बराबर. So thus we can conclude that if both currents are in same direction, then attractive force acts. And if both currents are in opposite direction, repulsive force acts. अब यहाँ पर आपको जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या है? म्यू नॉट I1 I2 L अपन 2 पाई r. ठीक है. If I1 I2 1 ampere
length 1 meter and perpendicular distance is also 1 meter, in that case the force is mu naught upon 2 pi. So it is 2 into 10 raised to minus 7 न्यूटन, बराबर। तो इससे आप एसआई डेफिनेशन एम्पियर की दे सकते हो। फॉर टू वेरी लॉन्ग straight current carrying wires placed at 1 meter perpendicular distance having equal currents in the same direction. For two very long straight current carrying wires placed at 1 meter perpendicular distance having equal currents in the same direction. ओके, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। देन if the force per unit length is 2 into 10 raised to minus 7 Newton, then both have equal currents of 1 ampere. ठीक है। For two very long straight current carrying wires placed at 1 meter perpendicular distance having equal currents in the same direction, then if the force per unit length is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then the both have equal currents of 1 ampere. ठीक है, तो ध्यान से देख लो, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, बराबर। मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला ये है। और हमें एक और चीज यहाँ पर नोट करनी है कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो टाइप ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, एंड करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो टाइप ऑफ फोर्स रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, derive the expression of torque acting on the rectangular current carrying loop placed in uniform magnetic field. Here we have to discuss two cases. In first case, the plane of the loop is parallel to uniform magnetic field, and in second case, plane of the loop is not parallel to magnetic field. Now here this consider a current carrying loop of area A is equal to AB having current I and placed such that its plane is parallel to. Consider a current carrying loop of area AB having current I is equal to I and place such that its plane is parallel to magnetic field. Now here listen, consider side BC and
AD. In this case, direction of current is either parallel to magnetic field or anti-parallel to magnetic field. In that case, your IL cross B becomes 0. So on these two sides, force 0. For sides BC and DA, current element IA and magnetic field B are either parallel or anti-parallel to magnetic field. So magnetic force on this sides is 0. तो इन पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बराबर। नाउ फॉर साइड AB, बराबर, if I consider side AB, so here you can see your force, the direction of force, the current is perpendicular to magnetic field. ओके, तो अगर मैं इसे फोर्स कंसीडर करूं, इस साइड पर अगर मैं फोर्स कंसीडर करूं, ठीक है, तो वो इस तरह से होगा रिलेशन, ये IL की डायरेक्शन है और ये B की डायरेक्शन है, तो IL क्रॉस B अंदर की ओर होगा, बराबर। तो फॉर साइड AB ये फोर्स अगर मैं F1 लूं, बराबर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, IBB, बराबर, and direction perpendicular to plane inside. Perpendicular to plane inside. Similarly, for side CD, बराबर, वो फोर्स अगर मैं F2 लूं तो सेम हो जाएगा, बराबर। इस केस में आपको फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटसाइड मिलेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटसाइड, बराबर। तो इसका मतलब ये है रिलेशन, F1 इस तरफ, इस तरह अंदर की डायरेक्शन में है, और ये सपोज F2 है और ये F1 है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये कोलिनियर नहीं है। F1 and F2 फॉर्म कपल, क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज अपोजिट, एंड दे आर नॉट कोलिनियर। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, तो आपको पता है मोमेंट ऑफ कपल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बराबर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, बराबर। तो आपके केस में रिलेशन, ये जो है ये टॉप व्यू है, अगर मेरा यहां से टॉप व्यू देखा जाए तो ये इस तरह से होगा, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, बराबर। तो ये F1 होगा और ये F2 होगा, बराबर। ये A D, तो इस केस में यू कैन सी जो डिस्टेंस A है वो आपका दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी, बराबर, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, तो टाउ इज आई स्मॉल बी कैपिटल बी ए, बराबर, ये आपको टॉर्क मिला। अब यहाँ पर लिशन ए इंटू बी तो एरिया हो जाएगा आई ए बी कैपिटल बी, सो टॉर्क इज आई ए बी, बराबर, साइन 90, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसे मैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर टाउ आई ए क्रॉस बी, बराबर, if the loop has capital N turns, then torque tau NIA cross B, ठीक है, then torque tau is NIA cross B। ये केस 1 हुआ, इसे आप ध्यान से पढ़ लो, नोट्स बना लो, फिर मैं केस 2 डिस्कस करता हूँ। Case 2, now the plane of the loop is not parallel to magnetic field. Okay, so in this case angle between area vector and magnetic field is theta. Okay, now you can see magnetic force on side BC and side DA are equal in magnitude, opposite in direction, and are collinear, so they do not form the couple. Clear? यहाँ पर magnetic forces बराबर F2 and F2 dash on sides, कौन कौन सी साइड है, AB and CD, they form couple। F2 और F2 डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, I B कैपिटल B, लेंथ उनकी B है, ये A है और ये लेंथ B है, बराबर, तो यू कैन सी जो दोनों साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, बराबर, ये सपोज मैं y डायरेक्शन लूँ और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के x डायरेक्शन लूँ तो परपेंडिकुलर है, तो साइन 90, इस हिसाब से जो फोर्स है F2 और F2 डैश वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट यू कैन सी उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बराबर, तो ये फोर्सेस कोलिनियर नहीं है एंड सो दे फॉर्म कपल, बराबर। अब आपको कपल के लिए क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ कपल
तो मोमेंट ऑफ कपल इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वो तो आपको पता है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बराबर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टॉप व्यू लेना पड़ेगा। बराबर, तो अगर मैं जब टॉप व्यू में लूंगा तो मुझे बीसी साइड इस तरह से दिखाई देगी। बराबर, ये F2 है, सपोज ये F2 डैश है। बराबर, ये प्लेन है, तो ये आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल थीटा है। हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। बराबर, ये F2 डैश की लाइन ऑफ एक्शन है, ये F2 की लाइन ऑफ एक्शन है। सपोज ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और इसीलिए ये एंगल थीटा होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2, पूरी साइड a है। तो फ्रॉम फिगर इट इज वेरी क्लियर कि अगर मैं साइन थीटा लूँ तो आपकी ये सपोज O है, ओपोजिट साइड ON अपन हाइपोटेनस OC, ये मैंने O लिया है। बराबर, तो ON हो जाएगा OC साइन थीटा। हमें चाहिए MN। बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच MN है, तो इट इज ट्वाइस ON। ON का ट्वाइस कर दो तो 2 OC साइन थीटा। तो 2 OC कितना है, a/2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया a साइन थीटा। ठीक है, सो देयरफॉर टॉर्क इज, अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है I स्मॉल b कैपिटल B a साइन थीटा। तो I AB कैपिटल B साइन थीटा, यानी IAB साइन थीटा। बराबर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n बराबर NIAB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में NIA क्रॉस B। NIA is called magnetic moment M. So your torque tau is M cross B। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ध्यान से। मैंने काफी नीट क्लीन बड़ा हर चीज को मेंशन की है। एग्जाम में आप ये भी लिख कर आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नाउ derive relation between magnetic moment and angular momentum for electron revolving around nucleus। तो suppose electron revolves around the nucleus, suppose electron revolves with speed v on circular orbit of radius r। okay,
नाउ करंट आई, तो ये जो फॉर्मूला है Q बाई टी, तो मैं अगर पीरियोडिक टाइम लूँ तो पीरियोडिक टाइम में इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पर से वन टाइम पास होगा, तो चार्ज कितना पास हुआ E, सो I इज E अपन T। नाउ स्पीड इज डिस्टेंस अपन टाइम, तो आपका टाइम होगा 2 पाई R अपन V, so therefore I is E अपन 2 पाई R बाई V, ये आपको करंट मिला। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, लिसन, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M इज I इंटू A। तो करंट आपने फाइंड किया EV अपन 2 पाई R, एरिया, रेडियस अगर R है सर्कुलर पाथ की, तो उसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर, तो इट इज हाफ EVR, M is half EVR। नाउ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है MVR, तो M बाई L, मैं एक काम करता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, बराबर, तो म्यू आपका हाफ EVR अपन MVR, तो म्यू बाई L इज E अपन 2M, तो म्यू इज E बाई 2ML, ये आपका स्केलर रिलेशन हुआ। अब लिसन, यहाँ पर सपोज ये जो है ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, बराबर, तो कन्वेंशनल करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई, बराबर, तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में मिलेगी, डाउनवर्ड। और अगर आप R क्रॉस एंगुलर मोमेंटम, बराबर, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम इज R क्रॉस P, तो R क्रॉस P फाइंड करोगे तो वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो हियर म्यू एंड L are in opposite direction because electron is negatively charged particle, तो बराबर इस ये रिलेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ तो माइनस E बाई 2ML, बराबर, ये जो कांस्टेंट E बाई 2M, इट इज कॉल्ड कायरो मैग्नेटिक रेशियो। और अगर आप E 1.6 इंटू 10⁻⁹, बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ to mass of electron 9.11 इंटू 10⁻31, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हो तो इट कम्स 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। रीड कर लो। Now Bohr magneton, what is Bohr magneton? It is the value of magnetic moment in case of hydrogen atom, okay, when electron, it is the minimum magnetic moment associated with electron, which orbits in hydrogen atom for n is equal to 1, it is the minimum। तो minimum
magnetic moment associated with electron which revolves in first orbit of hydrogen atom is called Bohr's magneton. So Bohr's magneton is minimum magnetic moment associated with electron which revolves in first orbit of hydrogen atom. ठीक है. Now listen. हमें ये रिलेशन पता है. Mu is E by 2m into L and according to Bohr's second postulate, angular momentum is nh upon 2 pi. Right? So therefore, for n is equal to 1, आपका angular momentum हो जाएगा h upon 2 pi. Right? तो mu is e upon 2m into h upon 2 pi. अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है, तो आप सारी वैल्यू पुट कर दो. तो बोर तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, प्लांक कांस्टेंट 6.625, 10⁻34, 4, 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 3.40. ठीक है. अब इसे आप ये आपको जो मिला म्यू नॉट, यही बोर मैग्नेटॉन है, और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. बराबर. magnetic moment associated with electron due to orbital motion is called orbital magnetic moment, and due to spin motion is called spin magnetic moment. Okay, and this spin magnetic moment is exactly equal to mu naught. ठीक है. तो minimum magnetic moment associated with electron which revolves in first orbit of hydrogen. first orbit है इसलिए minimum है मेरा. तो ये हमारे पास जनरल रिलेशन है, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच ये रिलेशन है बराबर. अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट आपका एंगुलर मोमेंटम है nh अपन 2 पाई. अब n की वैल्यू 1 ले लो बराबर, क्योंकि हमें मिनिमम म्यू चाहिए इसलिए n की वैल्यू हमने 1 ले ली. तो ये आपको जो मिला ये बोर मैग्नेटॉन की फॉर्मूला हुई, इसमें वैल्यू पुट कर दी. अब इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक मोमेंट उसकी ऑर्बिटल मोशन के कारण और स्पिन मोशन के कारण होगा. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट
ऑर्बिटल मोशन के कारण है इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और जो स्पिन मोशन के कारण है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।